Welcome to the show Celeb Talks. Today our guest is from finance and investment industry. He has recently been working with Pak Oman Investment Company as a country head. He is a fellow chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He has also completed his CIMA and has done his Masters from University of Karachi. He has also done his Chartered Islamic Finance Professional from Malaysia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nauman Abdul Majid. Thank you so much. Welcome to the show. Thanks. You have done a lot of things in your career, starting with chartered accountancy to CIMA and finance professional and economics. And you have worked in many countries, including Pakistan and Oman. So my first question would be on the macroeconomic background of the finance and investment industry. Thanks, Shadad, for inviting me over here. As you know that my background is mainly foreign investment. I was the country head of Pak Oman over there for quite a few years, and my only focus area was foreign investment. So let me give you first of all a brief outlook of what the FDI looks like. It's a very generic terminology which is used for various things in the industry. Okay, so foreign investment, if we broadly classify, it comes into foreign private portfolio investment, foreign direct investment. Within FDI, if you look at the subsectors, basically within FDI there are greenfield projects, there are brownfield projects, there are government projects, and there are private sector projects. Every project, every sector is different dynamics and different set of investors. This was on the opportunity side. If we look at the investor side, similarly we have got sovereign investors, we have got private investors. There are investors specializing in certain business areas, what we call strategic investors. There are multilateral financial institutions, which are social equity funds. So there are all sorts of investors which have different dynamics altogether. So what happens actually when we are talking about the foreign direct investment development into any country, we are normally using this terminology in a very generalized manner. But that does not give a true picture of what the economy is all about. वो महसूस ये होता है कि FDI को एक ही किस्म की चीज़ है और बस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, ऐसा नहीं होता। FDI के बहुत सारे सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जब कभी हम FDI की डायनामिक्स की बात करते हैं या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं, जो कि आप भी फाइनेंस की फील्ड से हैं, तो हमें ये देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये FDI किस सेक्टर के अंदर फिट इन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इसके, और FDI की डायनामिक्स ये हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट्स में आती है, स्पेशली उन कंट्रीज में जिनका बहुत लिबरलाइज कैपिटल मार्केट रिजीम है, तो बहुत ही ससेप्टेबल होती है, बहुत ही वल्नरेबल होती है टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर कोई कदगन नहीं होती, इमीडिएटली आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि 97 की ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था या 2008 में देखा था कि जैसे ही इकोनॉमिक सूरत हाल के अर्ली साइंस में जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है पैसा बाहर निकाल देता है। FDI के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले रहे होते हैं कंट्री के अंदर, स्पेशली FDI अगर आपकी ऐसे सेक्टर्स के अंदर आ रही है जो ग्रीन फील्ड ओरिएंटेड है वगैरह वगैरह, इसकी बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाले सेक्टर ऐसे हैं FDI के जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न्स होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, गवर्नमेंट 15 से 17% जो है वो गारंटी रिटर्न इसका देती है, उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन FDI का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी और वो डिविडेंड की फॉर्म में बहुत सारा पैसा लेके जाना शुरू करें, तो समटाइम्स इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही ब्रॉडली बताया है कि इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से द वेरियस सब कैटेगरीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबको अट्रैक्ट करने की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं और सबके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं। So, given that the Pakistan economic environment, and until recently there has been a change in government as well, what's in your view are the challenges and opportunities? So let's first talk about the opportunities. Yeah, let's talk from the positive side. देखिए, अगर पाकिस्तान की फंडामेंटल्स को हमने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखा जाए तो पाकिस्तान इज बेसिकली एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। आप हमारे किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, वो सेक्टर अभी तक पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर सकता है। आप अपना लिटरेसी रेट देखें, आप जो है आपका लिटरेसी रेट अराउंड 50-60-85% के आसपास है ऑन एंड पेपर, जब वो जो कि आपका प्राइमरी लिटरेसी रेट है। आपका हेल्थ केयर एक्सेस का बड़ा प्रॉब्लम है। आपका मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे आपकी एक्सपोर्ट्स प्रेडोमिनेंटली लिमिटेड हैं आपकी टेक्सटाइल की आ रही है। उसके बाद जो है आपकी IT एक्सपोर्ट्स आती हैं जो कि तकरीबन ऑफिशियल $1-1.5 अरब के आसपास हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों की आबादी है, रॉ मटीरियल्स काफ़ी है, तो अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर के अंदर है। फूड एंड एग्री के अंदर भी है, रिन्यूएबल में भी बहुत अपॉर्चुनिटी। उसकी वजह ये है कि हमारा लॉन्ग टर्म का मुस्तकिल बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो हमें रिन्यूएबल्स एनर्जी में बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर है, अब ये डिपेंड ये करता है कि अपॉर्चुनिटीज जैसा कि मैंने कहा कि हर सेक्टर में एग्जिस्ट करती हैं, कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कैसे करते हैं इस किसी भी सेक्टर के अंदर। ऑन द चैलेंजेस साइड आपने चैलेंजेस को भी देखना होगा
चैलेंजेस के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक तो आपका गवर्नमेंट रिलेटेड है और एक प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड है। गवर्नमेंट में आपको ये देखना होता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है। अगर पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऑन कैपिटल एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन। लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर आपका करेंसी डिवैल्यूएशन रिस्क वगैरह का एलिमेंट आता है, जो कि हमारी करेंसी अभी पिछले कुछ अर्से में खासी डिवैल्यू हुई है और आगे भी आउटलुक में नजर आता है कि हो सकता है, मुमकिन है कि थोड़ी बहुत और डिवैल्यूएशन भी हो। तो एक तो ये उसका रिस्क है। सेकेंडली ऑन द प्राइवेट सेक्टर साइड इसमें जो मेजर चैलेंज है तो गवर्नमेंट सेक्टर का, एक तो मैंने आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क को बताया, सेकंड उसका एलिमेंट गवर्नमेंट का ये होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से एफडीआई को अट्रैक्ट करती है, गवर्नमेंट रोड शोज कैसे करती है, गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को पैकेजिंग कैसे करती है, गवर्नमेंट सिर्फ जाके अपॉर्चुनिटी से बात करती है या इन्वेस्टर रेडी प्रोजेक्ट्स जो हम कहते हैं अपना होमवर्क पूरा करके जाती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के पार्टनर्स कौन है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ऑन फ्रॉम दी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर का पहली बात तो ये कि विजन कितना है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स ऐसे हैं जिसका पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन वो इंटरनेशनल पार्टनर नहीं रहना चाहते, नंबर एक। सेकेंडली ये भी है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है। वो इन्वेस्टर ग्रुप्स जो जिनकी कंपनीज डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, टैक्स इवेजन है, उनके लिए इशू क्रिएट हो जाता है कि हाउ टू शेयर द नंबर्स विद द फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है जी। सेकेंडली जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ विजन के साथ ग्रोथ आता है कि आपकी ग्रोथ एस्पिरेशंस क्या हैं, क्या आप लोकल रहना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं। और आखिरी जो चीज़ सिमिलर है गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो आपकी पैकेजिंग है। हमारा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो ये है कि हम लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एंगेज नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि वी ट्राई टू डू एवरीथिंग इन हाउस, और हमारे पास ये रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर से इक्विटी रेज करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट बैंक जो वहाँ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्कल में जो वहाँ के फैमिली ऑफिस के साथ सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के साथ काम करते हैं उनको एंगेज करें। अगर आप फार ईस्ट से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप फार ईस्ट के जो फाइनेंशियल सेंटर जैसे सिंगापुर और हांगकॉन्ग है वहाँ के इन्वेस्टमेंट बैंक से एंगेज करें, तब जाके डिपेंड करता है। तो हमें तो मेथोडिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है जो कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के एफडीआई में पीछे रह जाने की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू पैकेज आवर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर्ली। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो चैलेंज क्या मैंने इसे कहा कि गवर्नमेंट की चैलेंजेस अलग हैं, प्राइवेट सेक्टर के डायनामिक्स और चैलेंजेस अलग हैं। सो एज यू मेंशन अबाउट रोड शोज, तो आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को किस तरह से रोड शोज करने चाहिए इंटरनेशनली? देखिए, रोड शोज के लिए ज़रूरी है कि रोड शोज आर ड्रिवन बाय स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर्स, और सेक्टर में भी ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप जाके किसी से कहें कि चूँकि दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ हमारे पास हैं तो आइए हमारे टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और चूँकि हमारे पास दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है तो आइए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और चूँकि हम दुनिया के आबादी के हवाले से दुनिया के बहुत बड़े ममालिक के अंदर हैं तो आइए हमारे जो कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हैव टू बी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। आपने बताना होगा कि ये होमवर्क हमने किया हुआ है, ये इसकी लोकल डायनामिक्स है, हमने प्रोजेक्ट को रेडी कर लिया है, लैंड मौजूद है, टैक्सेशन मौजूद है, कंपनी आई, और फिर आप जाके किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को एंगेज करके जाइए, उसके स्पेसिफिक इन्वेस्टर जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनसे जाके बात कीजिए। तो एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक रूल है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, इन्वेस्टर रेडीनेस, जो कि नहीं होगा रोड शो के हवाले से। देन द सेकंड थिंग इज कि रोड शो हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड। आपने अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए रोड शो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप रिसर्च कीजिए कि कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन से ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर स्पेसिफिकली उन लोगों को जाके बात कीजिए। और रोड शो के साथ ज़रूरी है कि सिर्फ रोड शो का मतलब सिर्फ तकरीर करना या प्रेजेंटेशन करना नहीं होगा, B2B मीटिंग्स बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। बिल्कुल सही। तीसरी चीज़ रोड शो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ के लोकल इन्वेस्टमेंट बैंक से उनको एंगेज करें। हमारे बहुत सारे बैंक्स, हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, प्राइवेट ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके एक्सेस ही नहीं है रीजनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनको पता ही नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है कि वो किस तरीके से हम जाके और रीजन से या इंटरनेशनल मार्केट से अपनी फंडिंग रेज करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये तीन चार फैक्टर्स को आपको रोड शो में मद्देनजर रखना है कि आप रोड शो को सेक्टर फोकस रखना है कि किस पे आप काम करो, उस सेक्टर के अंदर के आपने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके जाना है किसी भी इन्वेस्टर के पास। सेकेंडली आपने अपना होमवर्क करना है, इन्वेस्टर फोकस भी रखना है कि कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं उन मखसूस सेक्टर और प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक ही सेक्टर के अंदर कुछ लोग जो है वो ग्रीन फील्ड में जाते हों, कुछ ब्राउन फील्ड में जाते हों, कुछ मेजॉरिटी लेते हों, कुछ माइनॉरिटी लेते हों, इट ऑल डिपेंड्स। कोई प्राइवेट इक्विटी फंड्स होंगे, उनका काम करने का तरीकेकार डिफरेंट होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ग्रुप्स का काम करने का तरीकेकार
डिफरेंट होगा। तो आपने फोकस करना है कि उस बंदे के पास अपने होमवर्क करके जाइए, और जो बंदा जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है उसको आपकी पिच जो है उसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। आप इन्वेस्टर को ये नहीं कह सकते कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक आके इन्वेस्ट कीजिए। आपने इन्वेस्टर को उसकी मर्जी के मुताबिक अपॉर्चुनिटी बना के देनी है। वो कहते हैं प्लेट में रख के देना होता है आपने। स्पेशली वो कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में होते हैं, आपका होमवर्क मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कन्विंसिंग करनी है इन्वेस्टर्स को। इसी चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि आपने वहाँ की जो वो इदारे, वो इन्वेस्टमेंट बैंक, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट करती है, उनको एंगेज करना है। आपने हमारे लोकल मैंने देखा है बाकी कंट्रीज के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं जो अपने रोड शोज वगैरह एंगेज करती हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को उस रीजन के इन्वेस्टमेंट बैंक से टच में लाती हैं, ताकि बाद में इदारे जो है 1-to-1 बेसिस पे काम कर सकें। सिमिलरली आपने ये भी देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि इन्वेस्टर रेडी हैं, जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो जाके किसी फॉरेन इन्वेस्टर के सामने खड़े हो सके, उनसे बात कर सके, उनसे एक्सपेंशन कैपिटल ले सकें। तो आपने ये सारा होमवर्क करने के बाद जब आप जाकर रोड शो करेंगे तो फिर आपके रोड शो के नतीजे होंगे। रोड शो का मतलब घूमना फिरना या कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता कि आप वहाँ गए, घूमे फिरे, आप किसी एक्सोटिक डेस्टिनेशन पे चंद लोगों से मिल के आ गए। आप रोड शो का मतलब ये होता है कि उसके टेंजिबल KPI, तो टेंजिबल रिजल्ट सामने आने चाहिए, उसका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, फॉलोअप मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसके बाद आप देखें कि अगर उसके रिजल्ट आए तो कितने आए जो टारगेटेड थे, और अगर रिजल्ट नहीं आए तो क्यों नहीं आए, ताकि अगला जो रोड शो है उसको मजीद बेहतर तरीके से किया जा सके। आपने मेंशन किया अबाउट होमवर्क, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो लोग आपको अप्रोच करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो प्रॉपर होमवर्क के साथ आपको अप्रोच नहीं करते हैं? देखिए, नॉर्मली जो मेरा तजुर्बा रहा है कि क्योंकि मैंने हमारे पास बाय वर्चू ऑफ प्रेजेंस हम इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बहुत सारी कंट्रीज से आ रहे होते हैं। नॉर्मली वो प्रपोजल जो किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू आ रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है बनस्पत इसके कि जो बिजनेस डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ओके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को पता होता है कि हमने जो है किस इन्वेस्टर को क्या चीज़ देनी, इन्वेस्टर किस किस एंगल से उस चीज़ को एवेल्युएट करेगा, जबकि बिजनेस ग्रुप्स का ये फोटे नहीं होता। ओके। तो मैंने देखा है, मैंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से भी देखा है, डेवलप कंट्रीज़ के हवाले से भी देखा है कि वो कंट्रीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाकायदगी के साथ फ्लो कर रही होती है, दे आर वेरी प्रोफेशनली मैनेज। वो हमेशा अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं। पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं, पाकिस्तानी बैंक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, अभी तक हमारी ये हैबिट नहीं कायम हो सकी कि जब हम अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को जो है इंगेज करें किसी रोड शो के लिए या किसी जो है फंड रेजिंग के लिए। सो मेरा अगला सवाल होगा, पाकिस्तान के जो डेमोग्राफिक्स हैं, एज वी आर ऑल अवेयर दैट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नौजवान। जी जी। तो ये जो नौजवान पॉपुलेशन है, इसका हमारे लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? देखें, जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है, इट कैन बी अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इस मौके पर अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो खाकी तो हम हैं, और हमारी फितरत में जो है वो हम जहन्नम में भी जा सकते हैं। नारी कहते हैं, नार आग को कहते हैं, और नूर जो है वो रोशनी को कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो है हम खाकी हैं, और इसकी वजह ये कि इंसान जो है ये हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, हम कैसे से उसको जो है हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करें, अपनी यूथ को क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया भर में स्किल्स गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। चाइना ने भी अपना एक नया IT टेक्नोलॉजी जोन लॉन्च किया है, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर बे एरिया टेक्नोलॉजी जोन, जो कि हांगकॉन्ग और उसके आसपास के रीजन में है। तो चाइना जैसे कंट्रीज ने पिछले 40 साल में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके पास भी शॉर्टेज है आ रही है उन टेक्नोलॉजीज में स्किल्ड लोगों की जो 4IR इंटरनेट ऑफ थिंग्स उस किस्म की चीज़ों में इक्विप्ड हों। तो उन लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि चाइना के मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ आएँ और फॉरेन कंट्रीज से भी लोग वहाँ पे आएँ, अपने आप को सेटल करें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है पाकिस्तानी फर्म्स के लिए, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए, कि वहाँ पे जाएँ, अपने आप को वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज को वहाँ एक्सप्लोर करें, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ें। लेकिन हमारा एक मुस्तकिल प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट है जी, ठीक है ना जी। तो अब बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सर्विस सेक्टर में नेग्लिजिबल है। इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट तकरीबन $150 बिलियन के आसपास है, हमारी जो है तकरीबन $1.5-2 बिलियन के आसपास हमारी जो IT एक्सपोर्ट है। इंडिया की जो आबादी है वो तकरीबन हमसे 6 गुना है जी, ठीक है जी। लेकिन जो इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो हमसे 100 गुना है। तो क्या वजह है
कि दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में जहाँ अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर रहे होते हैं, हमें तालीम और टेक्नोलॉजी में अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं, तो ताकि हम जो है उनसे आगे निकल सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने डेमोग्राफिक्स को लेवरेज करना होगा, जिसके लिए हमें हर लेवल पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। देखिए हमारे इसमें 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं, तो इस तरीके से तो हम तरक्की नहीं कर सकते जब अब तक हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये डेमोग्राफिक्स जो है उसको डिविडेंड में क्रिएट करने के लिए हमने अपनी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, फूड में खास तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी अगली एक जनरेशन तक, तब जाके हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंटरनेशनली कंपेटिटिव बनेंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये जो कि हमारी यहाँ इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो बड़े शहर हैं उसका अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारी अच्छी IT फर्म्स भी हैं जो ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कि जो हमारे वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनको लेवरेज किया जाए और उनको ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ताकि उन्हीं के मॉडल को कंट्री वाइड रेप्लिकेट किया जा सके। हेल्थ केयर में आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारी NGOs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप उनसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, उनको ग्रो करें, तो क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स और नर्सिस को वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली अपने डेमोग्राफिक्स की बात की है, हम अपने डेमोग्राफिक्स को मैनेज कैसे करते हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में यही कहा था कि हमारे बेशुमार बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और हमारा जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए वो उन लोगों की डेवलपमेंट है। अब वो डेवलपमेंट एग्जीक्यूट कैसे होती है, दी होल नेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये एक टॉप फोकस एरिया होगा गवर्नमेंट का आने वाले दिनों में, कि किस तरीके से हमारी यूथ को और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम किस तरह एजुकेशन में, नई टेक्नोलॉजीज में इक्विप करते हैं ताकि हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो सकें। As most of the viewers of this program are youth, so आप यूथ को क्या एडवाइस करते हैं? आपने भी माशाल्लाह 4-5 क्वालिफिकेशन ली हुई है, तो आपके ख्याल में क्या मल्टी डायमेंशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या इंसान को बस किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज एक ही क्वालिफिकेशन के साथ इनफ होना चाहिए? देखिए स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, और मैंने भी जितनी भी स्पेशलाइजेशन की है वो सारी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की फील्ड में है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक फाइनेंस एंड ऑल दीज क्वालिफिकेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। Okay. अगर आप टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं, डिसिप्लिन हैं विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो पहली चीज़ तो एक लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना। जो पहले वाला हालात नहीं है कि आपने ज़िंदगी में एक एजुकेशन ले ली है, एक डिग्री ले ली और एंड यू आर कंटेंट फॉर द लाइफ टाइम। टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन ट्रेंड्स आर चेंजिंग सो रैपिडली कि अब आपको जिस तरह एज वी हमारे दोस्तों के सर्कल में हम अक्सर कहते हैं अब कम से कम 70 साल की एज तक हमने अपने आप को जो है अपडेट करते रहना है कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट। और अगर आपका दिमाग फिट है तो आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, गिव्स यू गुड हेल्थ एज वेल। तो यूथ के लिए ये है कि वो देखें कि दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं और अपने आप को मुस्तकिल अपडेट करते रहे। ये आपकी कंटिन्यूस एजुकेशन है। पहले तो आपको ये होता था कि हमारे जो प्रोफेशनल इदारे हैं वो CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन करते थे। अब वो CPD सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, अब आप रियल सेंस ऑफ द वर्ड अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करना है कि आपने, ताकि आपको पता हो कि दुनिया में जो एजुकेशन और नॉलेज वर्ल्ड है वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि आप जो है लैग बिहाइंड नहीं कर सकते उसके अंदर। As it is said that all works and no play make Jack a dull boy. So आपका क्या व्यू है? आप अपनी तालीम और अपने काम के अलावा और क्या क्या दीगर मसरूफियात हैं? मैंने आपकी कुछ शायरी भी देखी है यूट्यूब चैनल पे, इसके अलावा आप ट्रैवल भी करता रहते हैं। थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताइए कि किस तरह से एक तो लाइफ जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस उसको भी मेंटेन करें और साथ साथ में एक सॉफ्ट एक कॉर्नर हो आपकी शख्सियत का। देखिए सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत सारे तरीक़ों से आती हैं। आपका मुताला होना चाहिए, यू हैव टू रीड डाइवर्सिफाइड थिंग्स। आजकल बहुत सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, या इवन जो आपके IB का इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB का जो करिकुलम है उसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो है नॉट ओनली इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, इन सब्जेक्ट्स को टेकअप करें। क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, जो आपकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को एनरिच करते हैं। तो मेरा भी शौक है, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था बहुत अर्से पहले। तो मैं लिटरेचर को पढ़ता हूँ, हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, रिलीजन को पढ़ता हूँ। आई एम एन एविड रीडर, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एट माई होम। प्लस ये कि मुझे सफ़र करने का बहुत शौक है, मुझे मौका भी मिला काम से भी, मैं पर्सनली भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं अब तक 30 ममालिक देख चुका हूँ दुनिया के। आई बीन टू हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, और मैंने वहाँ जाकर उनको एक्सप्लोर किया है, समझा है। आई नॉट अ फन ट्रैवलर, मैं वहाँ जाकर चीज़ों को, वहाँ की हिस्ट्री को, म्यूजियम्स को, हिस्टोरिकल प्लेसेस को, कल्चर को डीपली एक्सप्लोर करता हूँ, समझता हूँ, उसके बारे में रीडिंग करता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल से बात। एंड हाउ डज इट हेल्प इन योर करियर? ये बहुत होता है कि पहली चीज़ तो ये कि इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। आप जो है अपने आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया में लोग किस तरीके से
सोचते हैं, काम करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद देती है। ट्रैवलिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर जो बाइसेस हैं, जो तासुबात हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। आप इंसानों के दरमियान, आप इंसानों के पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दें। आपको पता चलता है कि दुनिया में सब इंसान हमारी तरह के होते हैं, उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात, वो भी हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह काम करते हैं। तो आपके अंदर जो इनहेरेंट बाइसेस होते हैं इंसान के अंदर, जो इंसान एक अपने बंद माहौल में रहने से डेवलप हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। Which means you become more inclusive rather than exclusive. बहुत इंक्लूसिव आपकी पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है, ओपन पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है। और ये चीज़ आप देखें ना, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आप दुनिया भर के इन्वेस्टर से और लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ जब आप उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आई बीन टू योर कंट्री, मैंने ये देखे हैं, तो एंड यू कैन रिलेट टू देयर कल्चर, आप उनसे बात कर सकते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, तो वो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है। और दुनिया में सबसे जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। Once people are comfortable working with you, you have a good relationship। आप दुनिया के टॉप बैंकर्स को देख लें, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देख लें, प्रोफेशनल्स को देख लें, दे आर गुड रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो यू हैव टू नो योर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू बी अ गुड रिलेशनशिप मैनेजर। उनमें से एक भी चीज़ बचेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। और ट्रैवलिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट, आपका विजन खुलता है, आप दुनिया को समझते हैं। और वो करके देखें कि आप ट्रैवलिंग जो है, इसीलिए अल्लामा इकबाल का दोबारा एक शेर पढ़ दूँगा, वो कहते हैं कि पुख्ता तर है गर्दिशे पहम से जामे ज़िंदगी, पुख्ता तर है गर्दिशे पहम से जामे ज़िंदगी, है यही है बेखबर राज़े दवाम ज़िंदगी। वाह। तो इसके अलावा एज यू नो मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, मस्कत के जो पोइट्री सर्कल्स हैं उसमें काफ़ी एक्टिव हूँ। तो दिस इज़ माई हॉबीज़, पढ़ता लिखता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। नोमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बट जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी पोइट्री में से कुछ सुना के जाएँ। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये मेरे क्लोज सर्कल के दोस्त हैं, बल्कि मैं अब तो मैं क्या करता था, लेकिन आपने अपना एक फेसबुक पेज भी बना लिया है नुमान अब्दुल मजीद के नाम से। तो जो लोग देखना चाहें वहाँ पर भी जाके ना सिर्फ मेरी पोइट्री बल्कि जो कुछ मैं सोचता हूँ, ख्यालात होते हैं, वो भी वहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पीपल कैन गो एंड विजिट माय पेज ऑन फेसबुक एज वेल। मैं अपनी एक नज़म सुना देता हूँ आपको जाने से पहले। और मेरी नज़म का उन्होंने है हवाएँ। नज़म कुछ यूँ है कि हवाएँ चलती रहती हैं कि इन ताज़ा हवाओं की कोई मंजिल नहीं होती। वाह। हवाएं चलती रहती हैं कि इन ताज़ा हवाओं की कोई मंजिल नहीं होती। हवा की बंद कमरों में कोई महफिल नहीं होती। वाह। हवाएं बंद कमरों में अगर महदूद होती हैं, घुटन से मरने लगती हैं या वो जहरीली बनती हैं। हवाएं बंद कमरों में अगर महदूद होती हैं, घुटन से मरने लगती हैं या वो जहरीली बनती हैं। हवाओं को अगर सच्ची अकीदत ताज़गी से है, मोहब्बत ज़िंदगी से है, तो उनको चलते रहना है। वाह। हवाओं को अगर सच्ची अकीदत ताज़गी से है, मोहब्बत ज़िंदगी से है, तो उनको चलते रहना है। यही कानून कुदरत है, यही कानून कुदरत है, हवा पानी या इंसान हो। यही कानून कुदरत है, हवा पानी या इंसान हो। जिसे आज़ाद रहना है, जिसे भी ताज़ा रहना है, जिसे भी जिंदा रहना है, तो उसको चलते रहना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।